Now, in the previous lecture, you have seen about we have just started with the protein synthesis. Protein synthesis includes two main steps, transcription and translation, as it was given in the central dogma for protein synthesis. Transcription is a process in which DNA is transcribed into RNA, that is messenger RNA, and translation is a process in which messenger RNA makes the polypeptide, makes the protein. So today we are going to start with the first major part of the protein synthesis, that is we are starting with the transcription. Now, what the transcription is, how transcription takes place, what are the different steps involved in transcription, this all thing we are going to see in detail according to your textbook. Now, what is transcription? When one strand of DNA, as we know, DNA is double-stranded, but remember, both the strand does not participate in transcription. Only one of the strand, which strand I'll explain you later, only one of the strand among the two strands of DNA, only one strand participate in transcription. So the strand which participates in transcription is called as template. Template is the original copy, is a parental copy. By using the information of the template, it makes the RNA molecule. So the strand which participates in transcription is called as template. So it is a one strand of DNA. One strand of DNA, it makes RNA. It transcribes the RNA, and this process is called as transcription, and this process needs the enzyme. This transcription is done with the help of enzyme RNA polymerase. So this RNA polymerase polymerize the RNA molecule, it makes the RNA molecule. So this is the definition, you can say, for a transcription. Now, transcription takes place in the segment of DNA. As we know, DNA is double-stranded, long helical structure. So the part of DNA called as gene, which participates in the protein synthesis. So the part of DNA, the segment of DNA which undergoes transcription, the part of DNA which undergoes transcription, you can say the gene which undergoes into transcription is called as transcriptional unit. A unit which undergoes transcription, it is a segment of DNA called as transcribed segment is a transcriptional unit. Now this is the double-stranded DNA. Each transcription unit has three parts. Each transcription unit has three parts. The first part is promoter. जिस DNA का ट्रांसक्रिप्शन होना है उसके तीन पार्ट होते हैं. The first part is promoter, the middle part is a structural gene and the last part is terminator. तो ये तीन पार्ट मिल करके एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बनाते हैं. फ्रॉम नाम से ही पता चल रहा है, आइडिया मिल रहा है. जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेगा, दैट इज अ प्रमोटर. जहां पे एक्चुअल इंफॉर्मेशन ट्रांसक्राइब्ड होगी, दैट इज स्ट्रक्चरल जीन. और जहां पे ये मैकेनिज्म टर्मिनेट होगा, स्टॉप होगा, दैट इज अ टर्मिनेटर. नाउ व्हाट हैपन, देखो, दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, एज यू नो, बोथ द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल. बोथ द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल. नाउ among these two anti-parallel strands, you can see the polarity of this strand, the polarity of the lower strand as shown in the diagram is from 5' to 3' end, and the other strand is from 3' to 5' end. As written here, इसमें से ये वाला strand, ऊपर वाला strand, it is a template strand. Template strand क्या था? जो actual में ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो mRNA के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड. लेकिन नीचे वाले स्ट्रैंड पे क्या लिखा है? कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड. मींस एक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट the transcription is present on sense strand. Actual information is present on the sense strand. जो RNA बनेगा वो इसके हिसाब ये बनाएगा, नो डाउट ये बनाएगा, लेकिन जो इंफॉर्मेशन बनेगी वो इसके हिसाब से बनेगी.
इसको कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड हम कहते हैं। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है बच्चों, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं। अभी जो प्रमोटर है, प्रमोटर क्या करेगा? प्रमोटर इट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट, इट प्रोवाइड्स द बाइंडिंग साइट टू आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जिसकी मदद से आरएनए पॉलीमराइज होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो आरएनए पॉलीमरेज कहां पर बाइंड होगा? प्रमोटर पे बाइंड होगा, यानी मैकेनिज्म यहां से स्टार्ट होके इस डायरेक्शन में मूव करेगा। रिमेंबर, ट्रांसक्रिप्शन एज पर द सेंस स्ट्रैंड, एज पर द कोडिंग स्ट्रैंड, जो आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इसके हिसाब से 3' to 5' की तरफ मूव करेगा। नाउ प्रमोटर प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा जो आगे पॉलीमराइजेशन करता जाएगा आरएनए का। द सेकेंड पॉइंट, इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, in the case of prokaryotes, this particular segment of DNA, this particular segment of DNA, sigma factor subunit, promoter has a sigma factor subunit. इसका जो आरएनए पॉलीमरेज है प्रोकैरियोट्स का, वो सिग्मा फैक्टर सब यूनिट को रिकॉग्नाइज करता है और ट्रांसक्रिप्शन को कंटिन्यू करता है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर प्रोकैरियोट्स। Now this part is a structural gene. In short, अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो इसका मेन काम है, प्रमोटर का मेन काम है आरएनए पॉलीमरेज का अटैचमेंट और मैकेनिज्म को स्टार्ट करना, कंटिन्यू करना। इट प्रोवाइड्स द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन ये जो मिडल वाला पार्ट है, दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन। Both the strands have opposite polarity. As said earlier, you can see it is clearly given in the diagram. One strand is from 5 to 3', other strand is from 3 to 5'. DNA dependent RNA polymerase. DNA dependent RNA polymerase is the enzyme which is responsible for polymerization. Responsible for polymerization, यानी अब पॉलीमराइजेशन इस डायरेक्शन में कंटिन्यू होगा और ये एंजाइम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहां पे आरएनए का फॉर्मेशन होगा। अभी ये जो दो स्ट्रैंड है इसमें से एक कोडिंग स्ट्रैंड है, नीचे वाला कोडिंग स्ट्रैंड है और ऊपर वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है, राइट। ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है। नाउ ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है बच्चों, कोड अब टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3' to 5', टेम्पलेट की पोलैरिटी 3' to 5', एंड दिस स्ट्रैंड दैट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड अंडरगोस ट्रांसक्रिप्शन, इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। लेकिन जब टेम्पलेट का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो इसके सामने जो नया स्ट्रैंड बनता है, इसके सामने जो नया स्ट्रैंड बनता है वो नया स्ट्रैंड एक्चुअल में इसके इंफॉर्मेशन के हिसाब से बनता है। तो जो कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' है, इसके सामने जो आरएनए का सीक्वेंस बनेगा, सीक्वेंस इन आरएनए विल बी सेम एज पर द सीक्वेंस प्रेजेंट इन द कोडिंग स्ट्रैंड। लेट मी एक्सप्लेन, यहां पे मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ फर्क कितना है कि डीएनए में जो थाइमिन होगा, आरएनए में उसकी जगह पे यूरैसिल आएगा। थाइमिन डीएनए में प्रेजेंट होता है, यूरैसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है। यूरैसिल आरएनए में प्रेजेंट है, थाइमिन जो है वो आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता। तो जो नया आरएनए बनेगा, जो आरएनए पॉलीमराइज होगा, जो न्यू सीक्वेंस बनेगा आरएनए का, वो इसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से बनेगा। ओनली थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरैसिल। ओके, ये पॉइंट मैंने क्लैरिफाई किया। ये ट्रांसक्रिप्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, देखो बेटा, ये जो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअल में होता कहां पर है, इसका लोकेशन, डीएनए जहां पर लोकेटेड होगा ट्रांसक्रिप्शन वहीं पर होगा, क्योंकि डीएनए पे ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ये न्यूक्लियोइड में, एज यू नो, प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड nuclear membrane. Nucleus is not distinctly visible, it cannot be distinctly isolated in the cell.
तो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, उसका जो क्रोमोसोम है जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड में ट्रांसक्रिप्शन होगा। बट इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम और डीएनए प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है। Now site of transcription, if you talk about the eukaryotic cell के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म है और वहां पर उसका जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम और डीएनए है, तो वो उसका ट्रांसक्रिप्शनल साइट होगा जहां पे ट्रांसक्रिप्शन होगा। मैंने बताया 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैं, इसमें से एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके सामने एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। ये पूरा सीक्वेंस, ये पूरा मैकेनिज्म कब होता है? देखो, सेल साइकिल के बारे में आप जानते हैं, सेल साइकिल में इंटरफेस दैट इज अ प्रिपरेटरी फेज और ऊपर डिवीजन का फेज दैट इज एम फेज। इंटरफेस में 3 सब फेसेस हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो ये मैकेनिज्म G1 और G2 फेज में होता है। नाउ अभी डीएनए में जो ट्रांसक्रिप्शनल सेगमेंट है, जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, इस यूनिट में प्रमोटर और टर्मिनेटर साइट होती है। प्रमोटर और टर्मिनेटर साइट होती है। ये प्रमोटर साइट मैकेनिज्म को प्रमोट करती है, इनिशिएट करती है, और टर्मिनेटर साइट जो है वो इस मैकेनिज्म को स्टॉप करती है। सेगमेंट स्टेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जब कंटिन्यू होगा, स्टार्ट होगा, तो उसके 3 स्टेजेस हैं। इनिशिएशन, यहां से जो मैकेनिज्म स्टार्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज इनिशिएशन। दिस मैकेनिज्म विल कंटिन्यू दैट इज कॉल्ड एज एलोंगेशन। एमआरएनए पॉलीमराइज होता जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एलोंगेशन। और टर्मिनेशन साइट पे जाके दिस मैकेनिज्म विल टर्मिनेट, सो दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन। तो स्टेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेजेस हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन के लिए प्रमोटर है, एलोंगेशन के लिए स्ट्रक्चरल जीन है, और टर्मिनेशन के लिए टर्मिनेटर है। टर्मिनेटर का फंक्शन यही है कि जब ये मैकेनिज्म यहां तक पहुंचेगा तो यहां पे वो टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और जो आरएनए बना है, जो मैसेंजर आरएनए बना है, उसको डीएनए से अलग कर दिया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा। दैट इज अ फंक्शन ऑफ टर्मिनेटर। नाउ लिसन हियर, व्हाट इज गिवन हियर। देखो, RNA polymerase, the enzyme which is responsible for initiating the mechanism of transcription, bind to promoter. RNA polymerase bind to promoter, यहां पे भी लिखा है RNA polymerase this promoter provides binding site to RNA polymerase. Now this RNA polymerase moves along the DNA. It moves along the DNA. जब RNA पॉलीमरेज डीएनए में आगे मूव करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा? डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड था, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड थे, वो उतना सा पर्टिकुलर सेगमेंट जो होगा डीएनए का वो अनवाइंड होगा, पूरा डीएनए नहीं। दैट पर्टिकुलर सेगमेंट विल बी अनवाइंडेड, उतना पार्ट अनवाइंड होगा, ओपन हो जाएगा। इट कॉज अनवाइंडिंग। तो जब आरएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आरएनए पॉलीमरेज जब मूव करेगा तो वो डीएनए का सेगमेंट, उतना पर्टिकुलर पार्ट अनवाइंड होगा। Among the 2 strand, 1 strand act like a template. As said earlier, जब ये अनवाइंड होगा तो इसमें से ये वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा, जिसकी मदद से ट्रांसक्रिप्शन होगा। और दूसरा वाला जो स्ट्रैंड है, जो टेम्पलेट नहीं है मगर वो एक्चुअल में सेंस स्ट्रैंड है, इसके पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। टेम्पलेट को ना एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। वन स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी सेंस स्ट्रैंड। एंटी सेंस क्यों कहा गया है? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन सेंस स्ट्रैंड पे है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन
अपोजिट स्ट्रैंड पे है, सो दिस स्ट्रैंड में ऑल्सो बी कॉल्ड एज एंटीसेंस स्ट्रैंड। अगर यहां पर ए है, अगर यहां पर एडिनाइन है, तो ऑब्वियसली यहां पे थाइमिन होगा, एडिनाइन के सामने थाइमिन प्रेजेंट होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वे में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो one strand act as a template called as antisense strand. The actual information is present on sense strand, that is on the coding strand. Now what happened? राइबोन्यूक्लियोसाइड, अभी जब ये खुल गया ना बच्चों, जब ये खुल गया, अब टेम्पलेट के सामने, टेम्पलेट, अभी ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये डायग्राम यहां पर वापस से बना है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देखो इस बार ना मैंने अपसाइड डाउन बनाया है, मतलब ये कि कोडिंग स्ट्रैंड यहां पे नीचे है, मैंने कोडिंग स्ट्रैंड को ऊपर कर दिया। कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी इज सेम, पोलैरिटी इज फ्रॉम 5' to 3', यू कैन सी 5' to 3'। दूसरा स्ट्रैंड जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको मैंने नीचे किया, टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी इज 3' to 5', टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी इज 3' to 5', राइट। Now what happened? अभी ये अनवाइंड हुआ ना, यहां पे तुमने पढ़ा कि इट कॉज अनवाइंडिंग, इतना सा पार्ट अनवाइंड हुआ। अनवाइंड होने के बाद जो इंफॉर्मेशन यहां पर थी, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एडिनाइन है, तो ऑब्वियसली यहां पे थाइमिन होगा, तो बच्चों ये जो सीक्वेंस है, यहां पर अगर साइटोसिन है तो यहां पे ग्वानाइन होगा, यहां पर अगर थाइमिन है तो यहां पे एडिनाइन होगा, यहां पे ग्वानाइन है तो यहां पे साइटोसिन होगा, एंड सो ऑन। ये अनवाइंड हो चुका है। अभी जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, ये न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म की तरफ फेस करते हैं, यानी इसी न्यूक्लियोटाइड्स को मैं नीचे लिख रहा हूं, द कॉन्सेप्ट इज सेम, इसी न्यूक्लियोटाइड को मैंने नीचे कॉपी किया, इट इज टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म साइड। अभी साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, और यू कैन से आरएनए के जो सब यूनिट्स हैं, देखो राइबो स्टैंड्स फॉर आरएनए वाला यूनिट, ठीक है, डीऑक्सी है तो डीएनए वाला यूनिट है, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। एक मिनट, हाँ, आरएनए के बारे में आपने स्ट्रक्चर 11th में पढ़ा था। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, यूजुअली आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिर्फ 1 मिनट में मैं रिवाइज करूं, हाँ 1 मिनट में। फॉर एग्जांपल ये आरएनए है, ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अभी आरएनए के जो यूनिट्स होते हैं, ये आरएनए के जो यूनिट्स हैं, इसको हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड, इट इज कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए के जो यूनिट्स हैं वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। अभी इसका जो एक यूनिट है, इसका जो एक न्यूक्लियोटाइड है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड हमने निकाला, जैसा तुमने डीएनए के बारे में पढ़ा था, यहां पर पेंटोज शुगर, यहां पर फॉस्फेट और यहां पे नाइट्रोजन बेस, अभी जो फॉस्फेट शुगर है, सॉरी जो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर में ऑल्सो बी कॉल्ड एज राइबोज शुगर फॉर आरएनए। डीएनए होता तो डीऑक्सी राइबोज शुगर बोलते, आरएनए है, ये हम इसको पेंटोज शुगर भी बोल सकते, इसको राइबोज शुगर भी हम बोल सकते हैं। ये फॉस्फेट ग्रुप है, PO4 है, और ये क्या है? नाइट्रोजन बेस। बच्चों नाइट्रोजन बेस जो होते हैं ना, नाइट्रोजन बेस इन द केस ऑफ आरएनए दो टाइप के, प्यूरीन और पाइरिमिडीन। ऐसा ही डीएनए में भी पढ़ा था, लेकिन जो प्यूरीन है वो एडिनाइन और ग्वानाइन, यहां पे भी एडिनाइन और ग्वानाइन, और जो पाइरिमिडीन है वो थाइमिन और साइटोसिन डीएनए में था। आरएनए में थाइमिन नहीं होगा, थाइमिन की जगह पे यूरासिल होगा। इन शॉर्ट ये जो नाइट्रोजन बेस है ये 4 टाइप के हो सकते हैं। नाइट्रोजन बेस, एडिनाइन, थाइमिन नहीं होगा, यूरासिल, साइटोसिन एंड ग्वानाइन, AUCG, ये 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स, 4 टाइप के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आरएनए में। तो आरएनए की जो यूनिट्स है, आरएनए की जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, अभी ऐसे ना मल्टीपल, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं।
आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जिसमें नाइट्रोजन बेस, एडिनाइन, यूरासिल, साइटोसिन और ग्वानाइन प्रेजेंट हैं। अब क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस आरएनए पॉलीमरेज मूव कर रहा है। अभी थायमिन जो होगा ना, थायमिन के आगे यहां पे एडिनाइन वाला राइबोन्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, जी के आगे सी वाला ऐड होगा, ए के आगे एक ही, रिमेंबर एक ही पैरिंग डीएनए में टी से होती है, बट ये आरएनए बन रहा है, तो यहां पे थायमिन हो ही नहीं सकता। आरएनए में थायमिन नहीं होता है, आरएनए में यूरासिल होता है, तो इंस्टेड ऑफ टी यहां पे होना चाहिए था टी, बट आरएनए में थायमिन नहीं है, इसलिए यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, यहां पर प्रेजेंट होगा यूरासिल, और सी के सामने क्या आएगा, जी आएगा। In this way, this information will continue। जो इंफॉर्मेशन सेंस स्ट्रैंड पे थी, रिमेंबर जो इंफॉर्मेशन सेंस स्ट्रैंड पे थी वही इंफॉर्मेशन कहां पर आ रही है, एमआरएनए पर आ रही है। द ओनली डिफरेंस इज थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। देखो ए के सामने ए आया, सी के सामने सी आया, टी के सामने यू आया, टी के सामने टी नहीं आया, थायमिन के सामने यूरासिल आएगा, जी के सामने जी आया, राइट। अभी क्या हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन मूव करते जाएगी, अकॉर्डिंगली न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे। तो जब ये आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर साइट तक पहुंचेगा तो वो मैकेनिज्म वहां पर स्टॉप हो जाएगा, एंड दिस न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए मॉलिक्यूल विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द टेम्पलेट और एंटीसेंस। देखो बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन इसका हो रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन कॉपी इसकी हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड, बिकॉज एक्चुअल इंफॉर्मेशन इसका वाला आ रहा है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट ये वाला स्ट्रैंड किया है, तो ये जो स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ये टेम्पलेट और एंटीसेंस स्ट्रैंड इसने अपने सामने एमआरएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द इनिशियल पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का आगे का मैकेनिज्म आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ इन द ट्रांसक्रिप्शन में जो एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन में जो एमआरएनए बनता है, इन द प्रीवियस डायग्राम यू हैव सीन ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, ऊपर वाला स्ट्रैंड जो था वो सेंस स्ट्रैंड था और नीचे वाला टेम्पलेट था, नीचे वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट था। टेम्पलेट के सामने एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ। अब जो एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ इन प्रोकैरियोट्स, जो एमआरएनए बनता है इन प्रोकैरियोट्स, नो नीड टू प्रोसेस एमआरएनए। जो एमआरएनए बन गया वो फाइनल है, उसकी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर प्रोकैरियोट्स। क्यों ऐसा? क्योंकि उसमें कोई इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। इंट्रॉन्स क्या है? इंट्रॉन्स वो नॉन फंक्शनल या नॉन कोडिंग सीक्वेंस हैं जो पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन के लिए जरूरी नहीं है। सो आगे इंट्रॉन का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, इंट्रॉन एक्सॉन के बारे में यहां पर कहीं दिया है। ओके, तो इट इज नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो प्रोकैरियोट्स में जो एमआरएनए बनता है ये फाइनल एमआरएनए होता है, उसकी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। मतलब इसके बीच में कोई ऐसा नॉन फंक्शनल सेगमेंट नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज फाइनल। बट इन द केस ऑफ, अच्छा, one more thing, in prokaryotes only one type of RNA polymerase is present. Only one type of RNA polymerase is used in prokaryotes. But in the case of eukaryotes में first of all जो mRNA बनता है वो final mRNA नहीं होता है, उसकी प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। कैसे प्रोसेसिंग होती आगे आ रहा है। By the way, in eukaryotes में, eukaryotes having three type of RNA polymerase, having three different type of RNA polymerase, RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3. Now these different type of RNA polymerase are responsible for transcribing different types of RNA.
अब जो mRNA बनता है यूकैरियोट्स में, जो mRNA बनता है बच्चों, mRNA के फॉर्मेशन के लिए पॉलीमरेज 2 इज रिस्पॉन्सिबल और पॉलीमरेज 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्राइबिंग RRNA. RRNA is a type of RNA which is present in ribosome, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्ट्री. जहां पे एक्चुअल में प्रोटीन बनती है वो राइबोसोम के अंदर बनती, राइबोसोम साइड पे बनती है. तो राइबोसोम में जो आरएनए है जिसको RRNA बोलते हैं, राइबोसोमल RNA बोलते हैं, उसके फॉर्मेशन के लिए पॉलीमरेज 1 है. पॉलीमरेज 2 mRNA बनाता है या HNmRNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA HNRNA बोलते हैं. सो दिस HNRNA, तो प्रोसेसिंग से पहले यूकैरियोट्स में जो mRNA बनता है, फाइनल mRNA बनता है, उस प्रोसेसिंग से पहले जो RNA बनता है दैट इज HNRNA. वो आगे डिस्क्रिप्शन में आएगा. पॉलीमरेज 3, RNA polymerase 3 in eukaryote is responsible for the formation of tRNA and snRNA. tRNA, the RNA which is present in the cytoplasm called as transfer RNA, responsible for transporting the amino acid from cytoplasm up to ribosome. mRNA के सीक्वेंस के हिसाब से अमाइनो एसिड को सप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी tRNA की है. snRNA, small nuclear RNA. So the different types of RNA, they are synthesized by the different type of RNA polymerase. Now transcription unit, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, प्रीवियस बोर्ड पे जो लिखा हुआ था उसमें था ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. वो यूनिट जिसमें प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर तीनों प्रेजेंट थे, उसको हम ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कहते हैं. अब ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बारे में यहां पे कुछ और डिस्क्रिप्शन है. डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर, डीएनए का वो सीक्वेंस, अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एग्जांपल ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएनए का वो सीक्वेंस, वो पर्टिकुलर पार्ट विच कोड्स फॉर ईदर फॉर्मेशन ऑफ mRNA, tRNA एंड RRNA. ये अलग अलग टाइप के RNA हैं जो इनके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम जीन कहते हैं. तो जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, इट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, यू कैन से इट इज अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट which is responsible for making, for synthesizing mRNA, tRNA or RRNA. Now, the part of DNA which not only makes the gene, which not only makes the RNA, लेकिन RNA के बाद उसका ट्रांसलेशन होता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद अगर उसका ट्रांसलेशन भी होता है और उससे पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम सिस्ट्रॉन कहेंगे. सिस्ट्रॉन, you can say it is a type of gene which is capable of synthesizing functional protein. Cistron is a fragment of DNA, it is a part of DNA, it is a type of gene which is responsible for synthesizing functional protein or enzyme. जो प्रोटीन और एंजाइम बना सकता है उसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं. अब जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है बेटा, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट याद रखना, आपने प्रीवियस डायग्राम में पढ़ा था, ये प्रमोटर था, ये टर्मिनेटर था, बीच में स्ट्रक्चरल जीन थी. अगर किसी भी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में सिंगल स्ट्रक्चरल जीन हो, मतलब सिंगल स्ट्रक्चरल जीन है, एक आरएनए का फॉर्मेशन होगा या एक पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा, अगर सिंगल स्ट्रक्चरल जीन है तो उसको हम मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलेंगे. अगर एक ही पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, एक पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, एक सिस्ट्रॉन है, तो उसको मोनोसिस्ट्रॉनिक कहेंगे. और अगर किसी भी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में, ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, अब इसमें एग्जांपल, इससे अलग पॉलीपेप्टाइड, इससे अलग पॉलीपेप्टाइड, इससे अलग पॉलीपेप्टाइड, 3 पॉलीपेप्टाइड बन रहे हैं, या वेरियस पॉलीपेप्टाइड्स आर फॉर्म, वेरियस स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेजेंट. एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में अगर स्ट्रक्चरल जीन, जैसे ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है, ये एक स्ट्रक्चरल जीन, ये दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, ये तीसरा स्ट्रक्चरल जीन, various structural genes are present. If various structural genes are present, such transcriptional unit is called as
polycistronic because it has many cistron, it synthesize many polypeptide. अब जो स्ट्रक्चरल जीन होती है बच्चों यूकैरियोट्स में, जो स्ट्रक्चरल जीन, बीच वाला पार्ट इज स्ट्रक्चरल जीन, ओके। अब ये बीच वाला पार्ट एग्जांपल ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये प्रमोटर, ये टर्मिनेटर, ये स्ट्रक्चरल जीन। इफ द स्ट्रक्चरल जीन, इसमें अगर बीच बीच में ऐसा सीक्वेंस है, बीच बीच में इट इज इंटरप्टेड बाय नॉन कोडिंग सीक्वेंस, तो ये इमेजिन ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है जिसकी जरूरत प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड में नहीं है, तो ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? इंट्रॉन्स। रिमेंबर प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए उसकी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में बीच बीच में मतलब इस स्ट्रक्चरल जीन को इंटरप्ट करने वाले नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जिसको इंट्रॉन, ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है। और जो फंक्शनल पार्ट है, जो कोडिंग सीक्वेंस है, कोडिंग सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? ये वाला पार्ट एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है। तो कोडिंग पार्ट इज एक्सॉन, नॉन कोडिंग पार्ट इज इंट्रॉन। प्रोसेसिंग के टाइम पे आगे जाके इंट्रॉन को कट एंड डिलीट कर दिया जाएगा, इसको रिमूव कर दिया जाएगा, इसको रिजॉइन कर दिया जाएगा। नाउ एक्सॉन मतलब फंक्शनल पार्ट, एक्सॉन, ओनली एक्सॉन अपीयर्स इन प्रोसेस्ड एमआरएनए। जब फाइनल एमआरएनए बनेगा तो इंट्रॉन नजर नहीं आएगा, इंट्रॉन को कट करके डिलीट कर दिया जाएगा, सिर्फ एक्सॉन रह जाएगा। So this is all about the transcriptional process. This is all about the transcriptional unit. अभी कुछ और भी बाकी है, ट्रांसक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसक्रिप्शन का रिमेनिंग पार्ट आई विल डू।